Hello students, in this video I am going to discuss about how to score good marks in class 10th social science examination for CBSE बोर्ड। अभी आपके एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो प्रिपरेशन कैसा करना है इसके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। The first important step over here is you understand the exam pattern, syllabus as well as question paper pattern. Second one, you understand the exam timetable, which is very important. Third one, read the textbook carefully. Fourth one, make short notes over here. Fifth one is revise syllabus. Sixth one, practice the maps for history as well as geography, क्योंकि आपको 5 मार्क के लिए मैप का क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। हिस्ट्री विल बी देयर फॉर 2 मार्क्स एंड ज्योग्राफी के मैप 3 मार्क्स के लिए रहेंगे। प्रैक्टिस सैंपल पेपर प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड ऑल्सो। ये साल 2 या 3 सैंपल पेपर बोर्ड ने प्रोवाइड किए हैं, सबके सब आप सॉल्व करने का कोशिश करो। as well as you try to solve previous year question paper also. Same questions will not be asked, but you will get some idea. Now understand the exam pattern and syllabus. सबसे पहला आपको तो जो टाइम बचा हुआ है उसमें you have to prepare a timetable. तो उसके लिए you have to understand the exam pattern as well as the syllabus. तो पहले आप देख लीजिए कि इसमें वर्किंग क्या है। तो you will come across a अपना जो सोशल साइंस है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री के अंदर you will come across 5 chapters and you can see here chapter wise mark distribution is given. पूरा जो हिस्ट्री है 5 chapters are there, it will be the asked for 25 marks, उसमें से 23 marks theory questions and 2 marks will be for what we can say is a map over here. See, the first chapter, Rise of Nationalism in Europe, will be for 6 marks. Nationalism in India for 8 marks. Making of Global World is up to only first 3 topics over there. That's why it will be for 1 mark. Remaining part will be for the project. The age of industrialization, this will be covered up in the periodic assessment over here. तो भले आपको ये सिखाया जाएगा बट पीरियोडिक असेसमेंट में कवर होगा, तो लास्ट एग्जाम के लिए इसमें से कोई क्वेश्चन आने का चांस ही नहीं है। देन फिफ्थ वन, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड विल बी देयर फॉर 8 मार्क्स। तो ये तरीके से आपका 4 चैप्टर्स यू हैव टू प्रिपेयर आउट ऑफ दिस 5 विल बी फॉर 23। और जो आपको 2 मार्क का मैप आएगा वो पहले 2 चैप्टर में से आएगा, नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया में से ही आएगा। उसका सेपरेट लिस्ट यू विल गेट इट इन द सिलेबस ऑल्सो। पॉलिटिकल साइंस में देर आर 5 chapters, 1 पावर शेयरिंग, it will be there for 2 marks. Federalism for 3 marks. Gender, religion and caste is for 2 marks. Political parties will be there for 5 marks. So one can understand how much important this chapter is. Outcome of democracy will be there for 3 marks. तो पूरा political science आपको 15 marks के लिए। No doubt you have to prepare all the chapters, but you have to give more efforts on political parties क्योंकि ये पूरा 5 marks के लिए रहने वाला है। अभी let us go for next remaining 2 units over here. The next remaining 2 units are geography. Geography के अंदर 7 chapters are there. टोटल ज्योग्राफी इज फॉर 25 मार्क्स, उसमें से 22 मार्क्स थियरी के लिए है और 3 मार्क्स फॉर मैप है। तो ये सातों का सातों चैप्टर में जो भी मैप्स है वो आपको यहाँ पे रेडी करना पड़ेगा। उसमें से कोई 3 मैप आपको पूछा जाएगा। तो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट विल बी देयर फॉर 4 मार्क्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस फॉर 2 मार्क्स, वाटर रिसोर्सेस फॉर 4 मार्क्स, एग्रीकल्चर फॉर 5 मार्क्स, mineral and energy resources for 3 marks, manufacturing industries for 3 marks, lifeline, national economy, roadways and railways only, यहाँ तक ही आपको प्रिपेयर करना है। दिस विल बी देयर फॉर 1 मार्क। तो यह सबसे कम मार्क वाला चैप्टर है। और बाकी में आप देखोगे तो एग्रीकल्चर 5 मार्क्स है और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 4 मार्क्स है। तो वन कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर। अगेन वाटर रिसोर्सेस में भी 4 मार्क्स है। ऑफ कोर्स आपको सभी चैप्टर प्रिपेयर करना है बट यू हैव टू गिव मोर एम्फोसिस ऑन दिस चैप्टर। एग्रीकल्चर में आपको रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में
You will come across different type of soils, etc. That is what you have to remember. Then economics खाली 15 मार्क्स के लिए आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. तो ये सब 25 के हिसाब से, 2020 के हिसाब से नहीं है, बट history will be for 25 marks, geography will be there for 25 marks, और remaining democratic policy केवल 15 marks के लिए है, और economics 15 marks के लिए है. तो development is for 4 marks, sector of Indian economy is for 5 marks, money and credit is for 5 marks, globalization and the Indian economy is for 1 mark. इसका जो remaining part है that will be again there for इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट वगैरह में चला जाएगा. Now the next part over here, question paper pattern. This is very important. Say total आपके जो 37 questions है, they are going to be divided into 6 sections A, B, C, D, E and F. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले 20 क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस रहेंगे, तो उनका 20 मार्क्स हो जाएगा. अभी इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सभी के क्वेश्चंस आएंगे. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ऑब्वियसली हिस्ट्री और ज्योग्राफी विल बी फॉर मोर मार्क्स, क्योंकि उनका 25 का पार्ट है इसलिए. देन 21 to 24 ये क्वेश्चन जो है 4 क्वेश्चंस अप टू 40 वर्ड्स. देखो बच्चों, आपको आंसर लिखते समय नंबर ऑफ वर्ड्स का ध्यान रखना है. 40 वर्ड्स मतलब 3 to 4 लाइन्स वन कैन अंडरस्टैंड. दिस इज वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, विल बी देयर फॉर 8 मार्क्स. ये तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ लिख के आते हैं, सो दैट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से आंसर लिखना है. जो दूसरा है 25 to 29, दिस विल बी अप टू 60 वर्ड्स, बट 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, सो इसका 15 मार्क्स हो गया. देन डी सेक्शन जो है उसमें 4 क्वेश्चन है, 30 से लेके 33 तक. ईच क्वेश्चन विल बी फॉर 5 मार्क्स. यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चन है, अप टू 120 वर्ड्स तक इनका आंसर लिखना है आपको. लॉन्ग आंसर्स है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा आंसर्स लिख सकते हो, मतलब एक पेज का ये आंसर हो जाएगा. 50 to 75% ऑफ द पेज विल बी ऑक्यूपाइड ओवर हियर. तो वो हिसाब से इसका बड़ा आंसर आप लिख सकते हो विद डिस्क्रिप्टिव है फुल. तो 20 मार्क्स का ये पार्ट हो गया. 34 to 36 खाली 3 क्वेश्चन है, बट दे आर केस बेस्ड, मतलब आपको कोई पैराग्राफ वगैरह दिया जाएगा और उसके ऊपर यू हैव टू answer the question again for 4 marks. So this will be there for 12 marks question हो गया. 37 is specifically for maps only. So there are two part A and B. A will be for history. There are going to be 2 questions in the history, and geography में there are going to be 3 questions. तो like that map will be compulsory for 5 marks. तो बच्चों मैं आपको ये बोलूँगा कि ये सबसे सिंपल पार्ट है, इसको आप प्रिपेयर कर लेना. हिस्ट्री में केवल 2 चैप्टर में से कुछ 3 मैप आने वाले हैं, ज्योग्राफी में बहुत सारे हैं, बट आप प्रैक्टिस करके रखो. 3-4 बार मैप पेपर मार्केट में मिलता है, वो खरीद लो और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करके रखो, सो दैट आपका 5 मार्क किधर भी नहीं जाना चाहिए. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जाम टाइम टेबल. तो अभी अपने पास कितना है, अराउंड 30 डेज बचे हुए हैं, और अपने पास चैप्टर कितने हैं, 20 चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं. तो अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर करते हो तो यू विल बी एबल टू प्रिपेयर द थिंग्स इन अ नाइस मैनर ओवर हियर. एग्जाम टाइम टेबल अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि अपना सोशल साइंस का जो पेपर है वो 7 मार्च को है, और उससे पहले 2 मार्च विल बी सैटरडे, जिस दिन अपना साइंस का पेपर है. मतलब ये सैटरडे आपको हाफ डे प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, और उसके बाद में यू विल गेट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ओवर देयर. मतलब you will get 4 days for the preparation over here. मतलब total you are getting 4.5 days even between the exam also. So you can prepare these chapters in a nice manner. तो ये जो 20 चैप्टर्स है उसमें से आपको हिस्ट्री में से 4 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं. टोटल 5 चैप्टर्स है, बट जैसे मैंने आपको बताया कि एक चैप्टर जो आपका है वो जा रहा है पीरियोडिक असेसमेंट में, और एक चैप्टर केवल 1 मार्क के लिए आना है. मतलब एक्चुअली आपको 3 ही चैप्टर इन डिटेल प्रिपेयर करने का है. पॉलिटिकल साइंस 5, ऑल द 5 यू हैव टू प्रिपेयर. ज्योग्राफी ऑल द 7 यू हैव टू प्रिपेयर. इकोनॉमिक्स में भी
4 चैप्टर्स, बट हर एक में से थोड़ा पार्ट, एक आध चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट प्रोजेक्ट वर्क वगैरह के लिए जा रहा है, आपका इंटरनल के लिए जा रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे 5 रहेंगे तो भी आपको 4, यहाँ पे 7 है तो भी 6, यहाँ पे 4 है तो भी 3 ही प्रिपेयर करने हैं। तो वही हिसाब से आप देखोगे तो यू कैन कंसिडर कि सेकंड और थर्ड को यू कैन गो फॉर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, देन फोर्थ एंड फिफ्थ यू कैन गो फॉर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। फिर भी आपके पास और एक दिन बचता है जिसमें आप लास्ट मिनट रिवीजन कर सकते हो। This is very, very important. Social science, even though it is vast, it is scoring subject और आपके पास पूरा 4.5 डेज का समय है जिसका आप पूरा पूरा फायदा उठा लो and try to score 90 plus marks in social science. Now the next part, you have to read the NCERT textbook carefully and you have to make the notes for last minute preparation. So read all the chapters from NCERT textbook. You have to, while reading you have to include case, कार्टून, टेबल्स एंड सोर्सेस। कार्टून जो है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो tables and sources you will come across in geography as well as in economics part over there. Making notes will help you in revising the entire syllabus effectively in short time। मतलब जो आपका 4.5 days है उसमें आपको ये सब काम में आएगा। Note down the important events and dates in history, very important part। क्योंकि आप जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए नोट्स बनाओगे तो उसमें आपके पास इवेंट एंड डेट्स हिस्ट्री में से बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रहना, तैयार होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा कि 5 चैप्टर्स है उसमें से केवल 3 चैप्टर में से आपको इवेंट्स और डेट्स लिख के तैयार करना है। दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, देन नेशनलिज्म इन इंडिया। ये 2 चैप्टर हो गए तो इनमें से आपको इवेंट्स और डेट्स को रेडी करना है। देन प्रिपेयर द टेबल्स एंड नेमोनिक्स फॉर ज्योग्राफी। जैसे सॉइल है, कल्टीवेशन है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर देयर, तो वहां पे आपको ये नेमोनिक्स काम में आएगा। very very important part. Now the next part, prepare mind map as well as flow chart। तो ये आपको हिस्ट्री वगैरह को शॉर्टकट में याद रखने में काम में आएगा, इकोनॉमिक्स को याद रखने में काम में आएगा। You have to practice the maps for history and geography। Once again I'm telling you the same thing। हम लोगों ने अभी अभी देखा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैप्स 5 मार्क के लिए आता है। अगर हम लोग रोज एक मैप भी तैयार करते हैं तो अपना पूरा 30 डेज के अंदर 2-3 बार मैप का प्रैक्टिस हो जाएगा एंड इजीली यू विल बी एबल टू पॉकेट दिस 5 मार्क्स। सो प्रेजेंटेशन टिप्स लास्ट में, आपका प्रिपरेशन वगैरह अच्छा रहेगा तो भी एंड में अपने को टेंशन रहता है, तो व्हाट वी हैव टू डू, आपको एक्स्ट्रा टाइम हमेशा मिलेगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा पेपर को चेक करने के लिए। तो उसमें आप लोग डिसाइड करके रखो कि कौन सा क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व, then write the answers in point wise manner instead of making paragraph। this is very important। ये मैंने बहुत बार देखा है कि सोशल साइंस का पेपर में लोग पॉइंट वाइज लिखते नहीं है। पॉइंट वाइज लिखोगे तो एग्जामिनर को चेक करने के लिए आसान हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट वर्ड्स बाय पेंसिल। राइट द आंसर्स बाय कीपिंग वर्ड लिमिट इन माइंड। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक ही रहता है, बट जब भी शॉर्ट आंसर में लिखने का रहेगा तो यू हैव टू राइट ओनली पॉइंट। स्पेशली हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार होता है। तो अपने को ये याद रखना है कि वर्ड लिमिट कितना है। शॉर्ट आंसर के लिए 40 वर्ड्स का लिमिट है, मतलब आपका आंसर 3 या 4 लाइंस में ही होना चाहिए। जिधर वही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएगा तो यू कैन एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन इन डिटेल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग पूरा आधा पेज का आंसर बना सकते हो जब भी वो लॉन्ग आंसर में रहेगा तभी। Okay, so thanks for watching the video। if you like this explanation then subscribe our channel for more such a videos। अभी आने वाले दिनों में मैं कुछ साइंस के न्यूमेरिकल वगैरह लेके आने वाला हूँ सॉल्व करके, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके आपको देने वाला हूँ। सो एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो do not forget to subscribe our channel and share this with your friends also।